Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 3, motion in a straight line. Equations of motion. Solving y integration method. So first of all we study about a formula of integration. इंटीग्रेशन x की पावर n लिमिट x1 to x2. Here lower limit x1, upper limit x2 into dx is equals to x की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1. अब इस पर हमें पावर पुट लिमिट पुट करनी है x1 x2. सो 1 अपॉन n plus 1 और x की पावर n plus 1 और लिमिट x1 to x2. सिमिलरली इंटीग्रेशन dx और लिमिट x1 to x2. अब हम अगर यहां पर 1 का मल्टीपल करें तो इंटीग्रेशन लिमिट x1 to x2 dx और अगर x की पावर 0 पुट कर लेते हैं 1 की जगह, क्योंकि किसी डिजिट पर जब पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है. सो इंटीग्रेशन x की पावर n plus 1 तो 0 plus 1 डिवाइडेड बाई 0 plus 1 और लिमिट x1 to x2. सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 x की पावर 1 लिमिट x1 to x2. सो इक्वल्स टू x लिमिट x1 x2. लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह x2 माइनस x1. तो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है. इसकी हेल्प से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व कर पाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वी नो दैट acceleration is equals to change in velocity delta v divided by time interval delta t. If time is very short, then acceleration is equals to limit delta t tends to 0 delta v upon delta t. Here time very short, so acceleration is equals to dv upon dt divided by 1 cross multiple dv is equals to a dt. तो अब हमने यहां पर कैलकुलेट किया dv is equals to a dt. अब हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये जो इक्वेशन हमारा आया उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का जब हम यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dv और लिमिट इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v is equals to a constant इंटीग्रेशन dt लिमिट लोअर लिमिट t1 अपर लिमिट t2. तो जब अभी हमने इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x आया तो ठीक उसी तरह इसका इंटीग्रेशन v होगा और लिमिट u to v is equals to a. सिमिलरली dt का इंटीग्रेशन t lower limit t1 to upper limit t2. Put the limit. So v minus u is equals to a t2 minus t1.
सो v इज इक्वल टू u उधर जाएगा प्लस a t2 माइनस t1. t1 is equals to 0 and t2 is equals to t. So final velocity v is equals to u plus a t minus 0. So v is equals to u plus at. This is first equation of motion or velocity time relation solving by integration method. Second equation of motion or position time relation solving by integration method. We know that velocity v is equals to delta x upon delta t. If time is very short, then velocity v is equals to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t. Here time is very short, so velocity is equals to dx upon dt. Cross product, so dx is equals to v dt. By using first equation of motion, according to first equation of motion, v is equals to u plus at. Then dx is equals to v की वैल्यू u plus at into dt. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे. सो इंटीग्रेशन dx लिमिट x1 टू x2 इज इक्वल टू u dt. तो u इंटीग्रेशन dt लिमिट t1 टू t2 प्लस at और इंटीग्रेशन dt लिमिट t1 टू t2. तो हमने सबसे पहले वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. टाइम इज वेरी शॉर्ट, सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. क्रॉस प्रोडक्ट dx इज इक्वल टू v dt. By using first equation of motion, v is equal to u plus at. So put the value of v in this equation. So displacement dx is equal to u plus at into dt. Integration on both sides. So integration dx limit x1 to x2 is equal to u dt, u constant. Integration dt limit t1 to t2 plus at dt, a constant, t पावर 1 dt लिमिट t1 सो t2. अब dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट हमारी है x1 टू x2 इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन t लिमिट t1 टू t2 प्लस a. अब t की पावर 1 तो x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1. सो t की पावर 1 t2 अपॉन 2 और लिमिट t1 टू t2. पुट द लिमिट तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस 1/2a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर. हियर जब टाइम t1 0, then displacement x1 is also 0, t2 is t, so x2 is equal to x. So x minus 0 is equal to u t minus 0 plus half a t square minus 0. So x is equal to ut plus half at square. This is second equation of motion or position time relation. Third equation of motion
और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. Solving by integration method. We know that velocity v is equals to delta x upon delta t. अब if time is very short, if time is very short, then velocity v is equals to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t. So velocity v is equals to dx upon dt. Velocity v is equals to dx upon dt. हमने यहां dv से मल्टीपल और डिवीजन कर दिया. इससे dv अपॉन dt की वैल्यू वेलोसिटी dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सीलरेशन हम पुट कर देंगे. सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू a dx डिवाइडेड बाई dv. क्रॉस प्रोडक्ट v dv इज इक्वल टू a dx. हमने यहां पर dv से डिवाइड और dv से मल्टीपल किया, जिससे dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a. देन वेलोसिटी v इज इक्वल टू a dx अपॉन dv. क्रॉस मल्टीपल v dv इज इक्वल टू a dx. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन v dv लिमिट u टू v इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dx लिमिट x1 टू x2. तो यहां पर इंटीग्रेशन v dv, तो इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट पुट की u टू v इज इक्वल टू a dx का इंटीग्रेशन x लिमिट x1 टू x2. तो 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिमिट पुट की इज इक्वल टू a x2 माइनस x1. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1. Here x1 is 0, x2 is equal to x. जब मोशन स्टार्टिंग किया तो डिस्प्लेसमेंट x1 0 और फाइनली डिस्प्लेसमेंट x2 इज x. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस 0. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax. This is third equation of motion or position velocity relation. Next topic, freely falling bodies. यानी जब बॉडी फ्री फॉल हो रही हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी u0, फ्री फॉल, द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. उस समय ग्रेविटी स्मॉल g वर्क करेगी. along with a constant acceleration is known as free fall. यानी किसी हाइट से जब बॉडी फ्री फॉल हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी u0 हो, उस समय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगी, जिसका एक्सीलरेशन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो उस समय जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस जी टी आएगा. सेकेंड है s की जगह हाइट h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन की जगह ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. अब अगर मान लीजिए कोई बॉडी अर्थ सरफेस से किसी वेलोसिटी से अप साइड यानी ऊपर की तरफ थ्रोन की जाए, तो एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद
जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। उस समय फर्स्ट इक्वेशन जो यूज होगा वो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि जब बॉडी अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगी और ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो ग्रेविटी नेगेटिव होगी। और सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यानी माइनस साइन यूज तब होगा जब बॉडी अपवर्ड मूव करे किसी हाइट की तरफ, और प्लस साइन तब यूज होगा जब बॉडी फ्री फॉल हो रही हो, और एक्सीलरेशन की जगह ड्यू टू ग्रेविटी यूज आएगा। सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u0 एंड एक्वायर वेलोसिटी इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमें इसे SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर से मीटर 1000 आवर 60 इंटू 60, 0 से 0 कट 6 या 36, सो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, हमें एक्सीलरेशन a फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, सो v माइनस u इज इक्वल टू at, सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v की वैल्यू 10 माइनस u0 डिवाइडेड बाई t 10 सेकेंड, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 बाई 10, a is equal to 1 meter per second square. Next question 2. A bus at rest accelerates uniformly to a velocity of 54 km per hour in 20 seconds. How much distance is traveled by the bus in 20 seconds? यानी ए बस एट रेस्ट, यानी u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू ए वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर हावर। अब v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर, मीटर 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 0 से 2 0 यहां पर कट हो गए। अब 6 से ये कैलकुलेट करते हैं, 6 9 जा 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, यानी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड यानी टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी हमें डिस्टेंस s निकालना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हमें डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, सो a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, तो a इज इक्वल टू v15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 220 t20, तो एक्सीलरेशन 15 डिवाइडेड बाई 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 सेकेंड प्लस हाफ a की वैल्यू 3/4 और t 20 का होल स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 इंटू 400 20 का स्क्वायर।
अब यहां पर 400, 4 2 जा 250, तो हमारा S आ गया 150 मीटर। यानी जो ये बस है ट्रेवल करेगी वो 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड when it traveled 50 मीटर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए कार। सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, सो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेवल्ड 50 मीटर यानी s इज इक्वल टू 50 मीटर। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब मेरे को a निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस u 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और s की वैल्यू 50 मीटर। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 75, 2 इंटू 50, 25 2 जा 25, 3 जा 75। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक्स।